ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਦੂਸਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਟੂਡੀਓ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ 3-4 ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਦੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਪਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ। ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਆਊਗਾ ਅਪਰੋਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ 1 ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ਼ਾਂਕ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਗਾ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾਂਕ ਐਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। GIS ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ਼ਾਂਕ ਐਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ NIC, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦਿਸ਼ਾਂਕ ਐਪ ਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਰਟ ਪਾਰਕ, ਜਿਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ AI ਐਂਡ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ AI ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਾਊਂਡਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਟੂ ਸਪੋਰਟ AI ਐਂਡ ਰੋਬੋਟਿਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ, ਰਾਈਟ, VC। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਣ ਭਲਾ? IIT ਕਾਨਪੁਰ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ IIT ਜੋਧਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਆਲਟੋ ਫਿਨਲੈਂਡ, ICMR ਯਾਨੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ, ਐਂਡ ਏਮਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰਟ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ? ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡ ਆ ਇਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜੋ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਰਟ ਪਾਰਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਮ ਗੰਗਾ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਇਆ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਮ ਗੰਗਾ। ਸੋ ਪਰਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਗੰਗਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ CDEC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, CDEC ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਰਾਈਟ। CDEC हैज़ डिजाइंड एंड इंस्टॉल्ड सुपर कंप्यूटर, नाम की है परम गंगा, नाम याद रखना। IIT रुड़की ये जोड़ा इंस्टॉल किया गया। एंड ये जी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी बेसिकली हैगी वो 1.66 पेटाफ्लॉप्स है, राइट, पीटाफ्लॉप्स 1.66 पीटाफ्लॉप्स है।
जेकर आप नैशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन बारे थोड़ा बहुत जानीए तो बेसिकली ये एक जॉइंट इनीशिएटिव है। मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है भी किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आउंदा। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक एंड इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के अंडर है एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी के अंडर आउंदा। बेसिकली उन्होंने जॉइंट मिशन है। इस मिशन के तहत बेसिकली ये चाहते हैं कि आप 24 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ डिप्लॉय कर दी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਆਪਾਂ डिप्लॉय कर चुके हैं। एंड ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ कैपेसिटी की गल कर रहे हैं, जिमें कल्ली परम गंगा की ਜਿਹੜੀ कैपेसिटी 1.66 पीटा फ्लॉप है, ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ बेसिकली सिस्टम आ उन्हों की यह टारगेट है, यानी इन्हों का एम है, ठीक है, कि 64 पीटा फ्लॉप्स तक आप या इस तो ज़्यादा आप टारगेट अचीव कर सकीए। ਜਿਹੜਾ कि फिलहाल आप 11 सिस्टम डिप्लॉय कर चुके हैं एंड मोर दैन 20 पेटा फ्लॉप्स आप कैपेसिटी बना चुके हैं। जाना कितों तक 64 तक जाना। सो यहो जी गल्लां हो सकता पेपर के आ जान। एंड किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर है या किन्ना दा जॉइंट इनीशिएटिव हैगा है वो जरूर याद रखना। एंड परम गंगा बेसिकली ये इनीशिएटिव जिहड़ा इंस्टॉल बेसिकली होया परम गंगा ये कित्थे होया IIT रुड़की। IIT रुड़की जरूर याद रखना, इत्थों भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नैक्सट आ गया कहता ईरान पुट्स सैकंड मिलिटरी सैटेलाइट नूर सैकंड। सो जिमें अपनी इंडियन आर्मी भी इसरो के नाल मिल के या ऑर्गेनाइजेशन के नाल मिल के बेसिकली DRDO के नाल मिल जाती है, यानी कि यह कुछ ना कुछ इनीशिएटिव लेंदे हैं जिहड़ा कि आप ऑर्बिट वगैरह यानी उन्होंने कवर करते हैं। मिलिटरी यानी कि जिहड़े कंसर्न वगैरह होंगे उन्होंने हैल्प करती है। सो इस तरीके नाल ईरान की बेसिकली यह सैकंड मिलिटरी सैटेलाइट है जिहड़ी नूर सैकंड है, यानी इस तो पहला भी सी एक नूर, ठीक है। नूर तो नूर सैकंड के फर्क सिर्फ हाइट का, यानी एडवांस टैक्नोलॉजी जिमें अपने मोबाइल होंगे हैं पहला, जिमें आप फॉर एग्जाम्पल कोई किसी कंपनी का मोबाइल आया वह एडवांस वर्जन जिमें OnePlus के होंगे हैं 7 हो गया जी, 7T है, फिर 8 है, फिर 8T है, फिर 9 अगर 9 Pro है, एवं तो पहला नूर सीगा, हुण नूर 2 आ गया बेसिकली। तो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स सक्सैसफुली लॉन्च्ड मिलिटरी सैटेलाइट नूर 2 इनटू ऑर्बिट। हाइट कितनी है 500 किलोमीटर या 311 माइल फ्रॉम द अर्थ। सैकंड मिलिटरी सैटेलाइट लॉन्च की गई है इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा। फर्स्ट मिलिटरी की गई सी लॉन्च जी अप्रैल 2020 के, जिसकी हाइट 265 माइल या फिर 425 किलोमीटर तुम कह सकते हो। सो बेसिकली जिमें नूर का जोड़ा मीनिंग है तुम्हें पता, नूर अपने अपने भी यूज़ कर लेंगे। सो पर्शियन लैंगुएज का मीनिंग की है लाइट, राइट है। सो बेसिकली यह एक एडवांस टैक्नोलॉजी है जी कि ईरान मिलिटरी वास्ते हैल्पफुल रहूगी, ठीक है। एंड जिहड़ा इस जिहड़ा नूर 2 है बेसिकली इहनूं जिहड़ा लैके जाऊगा, ਇਹਦਾ कैरीयर है जिहड़ा बेसिकली ਉਹਦਾ नाम की है कसीद। द 3 स्टेज कसीद और मैसेंजर कहा जाता है। द कैरीयर लॉन्च द नूर सैकंड कितों किया जाऊगा फ्रॉम द शाहड स्पेस पोर्ट, राइट है। इन्ना कुछ याद रखने की लोड़ नहीं, सिर्फ नूर 2 याद रखो, ईरान याद रखो एंड जो इनू लैके जाऊगा कसीद याद रख सकते हो। बाकी स्टैटिक जीके ऑब्वियस गल इंपॉर्टेंट रही है हमेशा। कैपिटल तहरान है, प्रेजिडेंट इब्राहिम, सो करेंसी ईरानियन रियाल। नैक्सट आ गए चाइना न्यू जनरेशन रॉकेट लॉन्चिज 22 सैटेलाइट इनटू स्पेस, यानी 22 सैटेलाइट को इकट्ठे लैके जाऊगी। वह नाम की है रॉकेट द लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट। सो ये एक तो याद रखना चाइना का सैकंड लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट है जो लॉन्च किया गया एंड कैरिंग डोमैस्टिक रिकॉर्ड 22 सैटेलाइट्स बेसिकली ये लैके गया, राइट है। लॉन्ग मार्च 8 लिफ्टेड फ्रॉम कितों ये बेसिकली लॉन्च होएगा वेंटन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, राइट है। सो 26 फरवरी को बेसिकली लॉन्च हो चुके हैं एंड विद द चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टैक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, राइट है। सो बेसिकली ये सक्सैस बारे इन्होंने दसिया। सो ਇਹਦਾ मेन ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ 22 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮੈਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਓਸ਼ੀਅਨ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, फायर प्रिवेंशन हो गया एंड डिजास्टर मिटिगेशन। सो ऑब्वियस गल है इन्होंने बेसिकली ये देखता रहेगा, राइट है। सो इत्थे तुसीं आही चीज़ां याद रखनी क्योंकि टाइम थोड़ा है। टाइम थोड़े दे विच आपां जिन्नियां ज़्यादा चीज़ां नूं एक बारी पढ़ जांगे तो हो सकता पेपर दे विच अपने काम आ जाए, राइट है। सो यह भाई आ गया तुहाडा, बाकी स्टैटिक जीके दी याद तुसीं जरूर रखनी है। इस तो बाद आ गया 6th एंड फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वगशीर इनैगोरेटेड एट मजागांव डॉक लिमिटेड। साइंस एंड टैक का जो पहला पोर्शन सीगा, पहला पार्ट सी, यानी वो भी मैं जोड़ा आप 5th पढ़िया सीगा, ये आप 6th पढ़ रहे हैं। जो वगशीर है जो बेसिकली इनैगोरेट होयागा, पहले 5 तुसीं जरूर याद रखने। हालांकि 2017 के आप कलवरी बेसिकली तुसीं पढ़िया होगा करंट अफेयर के जोड़ा कि 2017 के ड्यूटी से चलिया गया सी। सैकंड जोड़ा सीगा INS खंदेरी जोड़ा कि सितंबर 2019 है। इस तो बाद करंज आ गया, INS करंज, INS वेला, INS वगीर। ये 5 तुसीं जरूर याद रखने। एंड इन्हां 5 तो अलावा जोड़ा होना वगशीर वो तुसीं याद रखना, जोड़ा कि फाइनल तो 6th सीगा
ऑब्वियस गल है, ये आप बेसिकली फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास जोड़ा अंडर प्रोजैक्ट 75 है, यानी फ्रेंच के नाल फ्रेंच नेवल कंपनी ने बेसिकली इनू डिज़ाइन किया एंड मैन्युफैक्चर आप किया, राइट। मज़ागोटॉक लिमिटेड मुंबई हैज़ मैन्युफैक्चर्ड दैम, ठीक है। एंड फ्रेंच नेवल डिफेंस ने बेसिकली फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी ने बेसिकली इनू डिज़ाइन किया गया, राइट हो गया, ये याद रख लो। एंड इंडियन नेवी द्वारा यह लॉन्च किया गया, कित्थे किया गया, यह मज़ागोन डॉक लिमिटेड इन मुंबई। एंड लास्ट वाला भी आप इत्थे पढ़िया सीगा, सो ये सारे तुसी याद रखने ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड किहदे नाल यह अपना यानी कि अंडर जिहदे नाल यह प्रोजैक्ट आप कीता फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास अंडर प्रोजैक्ट 75, आ जरूर याद रखना। नैक्सट जिहड़ा आ गया भाई तुहाडा अगला, इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमिशनड इन जोरहाट असम। सो असम दे विच बेसिकली यह कमिशन किया गया, यानी ड्यूटी ते पहला ग्रीन प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो 99.999 यानी कि जोड़ा प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अपना यह कमिशन किया गया, किहदे द्वारा किया गया, ऑयल द्वारा, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। कित्थे किया गया, जोरहाट पंप स्टेशन असम दे विच, अप्रैल 2022, ठीक है। सो इस जी आप प्लांट की गल कर रहे हैं, यानी प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की गल कर रहे हैं, इसकी कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी हैगी 10 किलोग्राम पर डे, हर रोज़ यानी कि 10 किलोग्राम यह प्रोडक्शन कर सकता है। एंड इस प्लांट द प्लांट प्रोड्यूसिस ग्रीन हाइड्रोजन जोड़ा करूगा वो इलैक्ट्रिसिटी तो होगा एंड जनरेटेड बाय, यानी कि जोड़ा सोलर प्लांट है वो 500 किलोवाट का जोड़ा कि यूज़ कर रहा है अनायन एक्सचेंज मैंबरेन जोड़ा कि 100 किलोवाट का। ये इंपॉर्टेंट है चीज़ा, सो याद रखना कि यानी जोड़ा प्लांट है वो कैपेसिटी 10 किलोग्राम पर डे है। प्लांट प्रोड्यूस जोड़ा करूगा ग्रीन हाइड्रोजन कितों करूगा, इलैक्ट्रिसिटी फ्रॉम द इलैक्ट्रिसिटी जी जनरेट हो रही है 500 किलोवाट सोलर प्लांट तो, वो यूज़ कर रही है अनायन एक्सचेंज मैंबरेन जी कि 100 किलोवाट की है, राइट है। सो ये तुसीं याद रखना AEM, यानी ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, अनायन एक्सचेंज मैंबरेन, ठीक है। यह टैक्नोलॉजी बेसिकली इंडिया के पहली बार यूज़ हो रही है, सो इस करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। कैपिटल असम की चीफ मिनिस्टर गवर्नर तुसीं याद रख लो। इस तो बाद आ गया हम भाई रशिया सुक्सैसफुली टेस्ट लॉन्च सरमथ इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रशिया का तुहानूं पता यूक्रेन के नाल बेसिकली जिहड़ा तुहानूं पता रौला चल रहा है, सो उस दे चलते हुए भी ओवर यूक्रेन जी टेंशन वगैरह चल रही है, उहदे हुंदे होए सरमथ इंटरकॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि यह लॉन्च करनी अपने आप के बहुत वड्डी गल है। सो इंटरकॉन्टीनेंटल का मतलब की है कि अगले यानी नैक्सट कॉन्टीनेंट जिहड़ा भी हैगा उसनों यह यानी टारगेट कर सकते किसी भी कॉन्टीनेंट को, राइट है। सो बहुत यह इंपॉर्टेंट है, तुसीं बस इन्ना ही याद रखो कि सरमथ किहदे द्वारा सुक्सैसफुली टेस्ट लॉन्च किया गया, रशिया द्वारा किया गया, इंटरकॉन्टीनेंटल हैगा, राइट है। कैपिटल मॉस्को, प्रेजिडेंट याद रख लो, करेंसी हो गया तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, इंपॉर्टेंट है ना। चलो नैक्सट आ गया, इंडियन एयरफोर्स सुक्सैसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम Su-30 MKI फाइटर जैट। ब्रह्मोस बारे आप पिछले लैक्चर के भी पढ़िया है, मीडियम रेंज जी यह बेसिकली रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम, यानी कि सबमरीन तो भी लॉन्च हो सकती है, शिप तो भी हो सकती है, एयरक्राफ्ट तो भी हो सकती है, लैंड तो भी हो सकती है, एंड इट इज़ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो इंडियन यानी एयरफोर्स द्वारा यह सुक्सैसफुली टेस्ट फायर किया गया। सो ये याद रख लो, नाम याद रखना तुसीं सिर्फ Su-30 MKI फाइटर जैट, यानी इत्थों भी यह टेस्ट फायर हो चुका है। इस तो बाद आ गया रेडियो अक्ष, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है रेडियो अक्ष। सो रेडियो अक्ष इंडिया का फर्स्ट रेडियो चैनल है जोड़ा कि विजुअली इंपेयर्ड पीपल द्वारा, यानी कि उन्होंने पीपल द्वारा नहीं पीपल लई यानी बनाया गया, विजुअली इंपेयर्ड है जोड़े फर्स्ट एवर रेडियो चैनल है जोड़ा कि विजुअली इंपेयर्ड नेम्ड रेडियो अक्ष। ये याद रखना है महाराष्ट्र यानी नागपुर के इसनूं लॉन्च किया गया। नागपुर के दो यानी कि जी एसोसीएशन है, एक तो TB रैन, ये फुल फॉर्म याद रखियो, एक है सक्षम, इन्होंने दोनों द्वारा बेसिकली इसनूं लॉन्च किया गया। TB रैन की है द ब्लाइंड रिलीफ एसोसीएशन नागपुर, द ब्लाइंड रिलीफ एसोसीएशन नागपुर, एंड सक्षम की फुल फॉर्म की है समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, राइट है, समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल। सो इन्होंने दोनों द्वारा बेसिकली TB रैन ते सक्षम द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया महाराष्ट्र नागपुर के आर द ऑर्गेनाइजेशंस बिहाइंड दिस आइडिया। बस ये ओवरऑल इंडिया के वर्ल्ड के भी बेसिकली होगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअली इंपेयर्ड द्वारा रेडियो जोड़ा यानी विजुअली इंपेयर्ड पीपल लई बनाया गया रेडियो अक्ष, इंडिया का पहला। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जोड़े नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च किया गया 2 ऑनलाइन पोर्टल किए गए क्रॉप
एंड PQMS, बस इन्हों की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहूगी। किन्ना वास्ते है, प्लांट प्रोटैक्शन डिवीजन वास्ते बेसिकली बनाया गया। यानी ऑब्वियस गल है जो पैसटीसाइड्स वगैरह तुहानूं फुल फॉर्म च पता लग जू। जिवें क्रॉप की जिहड़ी फुल फॉर्म है वो कंप्रीहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पैसटीसाइड राइट एंड प्लांट क्वारंटीन मैनेजमेंट सिस्टम PQMS। सो क्रॉप ते PQMS दोने लॉन्च किए गए ऑफ प्लांट प्रोटैक्शन डिवीजन। यह ट्रेडर्स नूं बेसिकली जिहड़े ट्रेडर्स आ उन्हां नूं फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाऊगा एंड हैल्प करूगा एक्सपोर्ट ते इंपोर्ट दे विच भी राइट। न्यू दिल्ली दे विच फंक्शन होया सीगा, उत्थे बेसिकली यह लॉन्च किया गया। किहदे द्वारा किया गया? एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। क्रॉप ते PQMS दोनों की फुल फॉर्म जरूर याद रखनी आ, खास करके क्रॉप, क्योंकि बहुत जणिਆਂ ਨੂੰ क्रॉप का पता नहीं लगना। सो इस करके कंप्रीहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड एंड ऑब्वियस गल है PQMS प्लांट क्वारंटीन मैनेजमेंट सिस्टम। इस तो बाद आगे इजराइल ने सुक्सैसफुली टेस्ट किया न्यू लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम। फस्ट टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड के विच लेजर बेस्ड एक एयर डिफेंस सिस्टम जिहड़ा टेस्ट किया गया फस्ट टाइम, तो एयर डिफेंस सिस्टम जिहदा नाम है आयरन बीम। किहदे द्वारा किया गया? इजराइल द्वारा किया गया, जिहड़ा कि डिस्ट्रॉय कर सकता कोई भी हवा दे विच ऑब्जेक्ट है इंक्लूडिंग ड्रोन्स। बहुत खतरनाक है, यानी कि ड्रोन्स वगैरह सब खत्म कर सकता है। सो आयरन बीम इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वैपन सिस्टम दैट यूजेज अ लेजर बीम टू शूट डाउन इनकमिंग अनमैंड आर्म व्हीकल हो गए, UAV यानी कि रॉकेट हो गए, मोर्टार हो गए, लॉन्ग रेंज मिसाइल हो गया, एंटी टैंक मिसाइल हो गया, उन्होंने बेसिकली यह खत्म कर सकता है। एंड किहदे द्वारा यह बेसिकली किया गया? इजराइल द्वारा किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजराइल का सारा स्टैटिक पोर्शन जरूर याद रखना है, जेरूसलम ਜਾਂ फिर इसकी प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर की करंसी जरूर याद रखना है। नाम याद रखना है, की नाम है? आयरन बीम, प्लीज़ याद रखना। इस तो बाद आ गया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया गया एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। सो पूछा जा सकता है रिसेंटली एंटी करप्शन मोबाइल ऐप किहदे द्वारा लॉन्च की गई है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है जिहड़े कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा यह बेसिकली लॉन्च की गई है, जिसका नाम की है मोबाइल ऐप का 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। ये लॉन्च की गई है एंड डिवेलप की गई है बाय द स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा। एंड ऑब्वियस गल है लोगों द्वारा है, यानी लोगों को बेसिकली हैल्प मिलेगी। बाकी कैपिटल उत्तराखंड की याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समर कैपिटल जरूर याद रख लो, ये पूछी जा सकती है। इनू जी दे नाल भी पा सकते हैं, यानी कि ग्रीन सी भी कहा जाता है, नहीं बरार सेन राइट। सो ये याद रख लो। बाकी देहरादून तो सारों पता ही है, बाकी समर कैपिटल हो सकता कई बार पूछ ले जाए राइट। सो गवर्नर गुरमीत सिंह एंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। इंडिया सुक्सैसफुली फ्लाइट टेस्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैलिना। बस इत्थे भी नाम ही इंपॉर्टेंट है। हैलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जी सुक्सैसफुली बेसिकली टेस्ट होया गया एंड ये डिवेलप की गई है, जी कि साइंटिस्ट ऑफ DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। सो तिन्हों द्वारा यानी कि यह बेसिकली तुम कह सकते हो कि फ्लाइट टेस्ट ज्वाइंटली कंडक्ट किया गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन तो की आऊगा भी लेटेस्ट DRDO, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल केड़ा बेसिकली टेस्ट फ्लाइट टेस्ट यानी सक्सैसफुल होयागा। सो वो ऑप्शन पे होगा हैलिना। सो ये तुम जरूर याद रख लो। बाकी ये मैक्सीमम रेंज 7 किलोमीटर है। डिवेलप किया गया DRDL द्वारा राइट, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट लैबोरेटरी हैदराबाद द्वारा ये डिवेलप किया गया है राइट। हो गया। सो हैलिना याद रखना बेसिकली, ओके हो गया। नैक्सट आ गया DRDO कंडक्ट्स सक्सैसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। बेसिकली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट जोड़ा है ये फ्लाइट टेस्ट DRDO द्वारा सक्सैसफुल होएगा। थोड़ा ये बारे दस देना, जिमें कि रामजेट है जोड़ा बेसिकली जिमें आप कहने होंगे कि सॉलिड फ्यूल बेसिकली की है कि जिदे राही ये टेक ऑफ होगा राइट। जिमें फॉर एग्जाम्पल रामजेट मिसाइल है तो बेसिकली सॉलिड फ्यूल है जोड़ा इसनों एक बारी की करूँगा, यानी बेसिकली ये कंजम्पशन घटाऊँगा, यानी आए कह लो भी ये जोड़ा फ्यूल आ वह घट यूज़ होगा। वो घट यूज़ किमें होगा क्योंकि सॉलिड फ्यूल में एक बार यूज़ करके ही टेक ऑफ कर दूगा। जो हवा के चलिया गया तो फिर हवा के जी प्रेजेंट ऑक्सीजन है उन्होंने यूज़ करके बेसिकली ये फिर अगे जाऊगा। जिमें फॉर एग्जाम्पल आप कहीए कि जोड़ा अपना मान लो कोई मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल को स्टार्ट जिमें CNG है, CNG तुम वहीकल देखे होंगे तो उन्होंने स्टार्ट होने वास्ते वो पेट्रोल की यूज़ करता, हो पेट्रोल में यूज़ करता स्टार्ट होने वास्ते, उस तो बाद वो फिर CNG से चलता। तो वही एक तरीके का कंसैप्ट तुम इत्थे कह सकते हो। मैं वैसे एग्जाम्पल ले ली तो सॉलिड फ्यूल द्वारा ही यह टेक ऑफ एक बार लै रहा, उस तो बाद जी हवा के बेसिकली ऑक्सीजन है उसको यूज़ करके ही अगे जा रहा। तो वही आप सक्सैसफुली फ्लाइट टेस्ट अपना हो चुका
सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर, राइट, बूस्टर ऑफ एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, ये याद रख लो, कोस्ट ऑफ उड़ीसा जिथे यह किया गया, राइट। सक्सैसफुली यह हो गया, तो इत्थे लिखिया होगा कितना ना किते कि यह डिवेलप किहदे द्वारा किया गया, DRDO लैबोरेटरी हैदराबाद, जिहड़ा आपां पिछे पढ़ के हटे, तो इत्थे चलो हाँ जी मैं गल दस दा ना कि जिहड़ा बेसिकली फ्यूल की वरतों आ जिहड़ी घट होगी, एंड जिहड़ा की कहते होंदे उहनूं समोक आ जिहड़ी बेसिकली धुआं वो घट होगा, राइट, यानी पोल्यूशन फ्री होगा लगभग, राइट। सो इस सबजैक्टिव के नाल बेसिकली टेस्ट फायर होयागा, ओके हो गया, यानी टेस्ट किया गया। नैक्सट आ गया जी, कैडिला फार्मा लॉन्चिज वर्ल्ड्स फस्ट नोवल 3 डोज वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज़। कुत्ते के वड्डे जिहड़े हैगे आ कुत्ते के वड्डिਆਂ ਨੂੰ बेसिकली टीके ज़्यादा लगते, हालांकि कल्ले कुत्ते के वड्डਣ ਨਾਲ नहीं हो रेबीज़ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ बेसिकली रेबीज़ हो ਜਾਂਦਾ ਗਾ। सो रेबीज़ ਦੇ अगेंस्ट ਆਪਾਂ वैक्सीन ਲਵਾਉਣੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ बहुत घੱਟ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ रेबीज़ ठीक कर सकते हो। 3 ਡੋਜ਼ वैक्सीन है जी अगेंस्ट रेबीज़ के काम आऊगी। जिमें पहला अपने को जो अवेलेबल सीगा वो 28 दिनों का प्रोग्राम सीगा ते 5 इंजैक्शन लगते सीगे, तो ये देखा कि गया कि कई है जोड़े पूरा कोर्स पूरा करते नहीं, तो फिर वो दूसरे भी यानी कि जो रेबीज़ फैला सकते, ऑब्वियस गल है, राइट। यानी उन्होंने रेबीज़ रह जाता है क्योंकि पूरा कोर्स करते नहीं, क्योंकि लंबा चौड़ा प्रोसैस या कह लो कंपलैक्स प्रोसैस है, उसनूं सिंपल करने वास्ते हुण 3 डोज वैक्सीन जी बनाई गई है, जोड़े कि 1 हफ्ते का कोर्स है, एंड 750 रुपये लगणगे जेकर एक टीका, नहीं तिन्हों का जेकर इकट्ठा भरना गा तो 2145 रुपये भरने पैणगे। तो ये बेसिकली जोड़ा इंडिया के फस्ट फेस है, जोड़ा गुजरात के नाल बाकी स्टेटों के भी लॉन्च किया गया। कैडिला फार्मा राजीव मोदी, ये बेसिकली गुजरात बेस्ड कंपनी है, ठीक है। सो हैडक्वार्टर अहमदाबाद है, 1951 फाउंडेड है, तो सबसिडरी है, बाकी फाउंडेड हो गए, ठीक है। सो फाउंडर्स हो गए। सो ये चीज़ां तुसीं याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, एक चीज़ जरूर याद करिए कि जी 3 डोज वैक्सीन है, बेसिकली उसका नाम की है द TH रेबीज़, TH रेबीज़, राइट। ये जरूर याद रखना, ये वैक्सीन का बेसिकली नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैक्सट आ गया, US UK आस्ट्रेलिया प्लान टू डिवेलप हाइपरसोनिक मिसाइल्स अंडर AUKUS, बेसिकली नाम तो ही है, अमेरिका हो गया, UK हो गया एंड आस्ट्रेलिया हो गया। सो नाम तो ही है, बेसिकली चाइना का जोड़ा सुप्रीमेसी है बेसिकली पैसीफिक के ज़्यादा है, तो वैसटर्न कंट्रीज़ चाहते हैं कि पैसीफिक के अपनी भी सुप्रीमेसी हो, इस करके इन्होंने जॉइंट यह एक तरीके का प्लान किया गा, राइट, जिन्होंने आप कहने हैं AUKUS। सो ये याद रखना गा, इतने कितना कितने लिखा होगा कि भाई द मूव कम्स अमिड ग्रोइंग कंसर्न बाय द US एंड अलायंस चाइनाज ग्रोइंग मिलिट्री, जो पैसीफिक के बेसिकली हो रहा है उसमें, ठीक है। सो अपनी अपनी सुप्रीमेसी करना चाहते हैं। सो आस्ट्रेलिया UK तो US मिल रहे हैं, ठीक है। नैक्सट आ गया, इंडिया सक्सैसफुली टेस्ट फायर्स आर्मी वर्जन ऑफ MRSAM। MRSAM की है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, राइट है। सो यदि फुल फॉर्म याद रखनी है। सो बेसिकली ये भी टेस्ट फायर हो गया। द DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंडक्टेड 2 सक्सैसफुल फ्लाइट टेस्ट होया ऑफ इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, याद रखना गा, अगेंस्ट द हाई स्पीड एरियल टारगेट एंड एट इंटीग्रेटेड टेस्ट चांदीपुर ही, इतने सारे लगभग टेस्ट होया। सो ये याद रख लो भाई, ठीक है। MRSAM बस ये तुहानूं पूछा जा सकता है। चाइना सक्सैसफुली लॉन्च कर चुकी है न्यू सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ की ऑब्जर्वेशन वास्ते चाइना ने न्यू लॉन्च किया गया, हालांकि इस तो पहला भी 2 लॉन्च हो चुके हैं। तो जो न्यू लॉन्च होएगा उसका नाम की है भाई गॉयफिन 303। इस तो पहला गॉयफिन सीगा, उस तो बाद 02 सी आ पिया, गॉयफिन 3 सीगा ते दूसरा सीगा गॉयफिन 302, जो इस तो पहला ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। हुण गॉयफिन 303 लॉन्च किया गया अप्रैल 7 2022 में चाइना द्वारा यह किया गया। अर्थ की यानी कि इमेजिज वगैरह लैणगे प्रॉपर तरीके नाल, यानी कि जिहड़ियां फोटोआं वगैरह ये ऑब्जर्व करनगे, जिहड़ा कि ऑल वैदर कंडीशन ऑपरेशन वास्ते काम आ सकता, हाई स्पैशल रेजोल्यूशन, यानी कि जो भी जो हैल्प लैणगे बेसिकली अर्थ को ऑब्जर्व करके, राइट होगा। सो तुसीं याद रखना है गॉयफिन 303। इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट क्रिएट्स फस्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ओमिक्रॉन प्रोटीन। सो साइंटिस्ट का नाम याद रखना, जिमें ओमिक्रॉन तुहानूं पता कि एक नवा वर्जन आया, आपां जो करोना की गल करते हैं, कोविड की गल करते हैं। सो SARS-CoV-2 बेसिकली जिहड़ा ओमिक्रॉन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली उन्होंने समझ लिया, उन्होंने
समझ लिया, इस करके भी ऑब्वियस गल है, जेकर समझ लिया तो वो दवाइयां बन सकदियां ना। तो ओमिक्रॉन क्योंकि 36 म्यूटेशन करता है, 36 मोर दैन 36 म्यूटेशन करता, यानी इन्ने वार वो अपनी शेप जोड़ा स्ट्रक्चर बेसिकली चेंज कर सकता, जां कह लो करैक्टरिस्टिक वो चेंज कर सकता। ह्यूमन दे विच जोड़ा ह्यूमन सैल दे विच बेसिकली एंटर हुंदा गा, जिहड़ी प्रोटीन की आपां गल कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर नूं बेसिकली पहली बार इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट ने बेसिकली समझ लिया। उसका नाम की है डॉक्टर श्री राम सुब्रमण्यम, इंडियन ओरिजिन रिसर्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, हैज़ क्रिएट्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट मॉलिक्यूलर लैवल स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन। राइट हो गया, यही है जो ह्यूमन सैल दे विच हुंदा गा, ते मोटो इहदा की है भी आपां इहदे अगेंस्ट लड़ सकी, ऑब्वियस गल है। ठीक हो गया। इजराइल सक्सैसफुली कंप्लीट्स फ्लाइट टेस्ट ऑफ एरो 3 वैपन सिस्टम। सो एरो 3 वैपन सिस्टम इजराइल ने सक्सैसफुली कंप्लीट कर लिया। सो एरो 3 वैपन सिस्टम लैड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इट वाज डिवेलप्ड जॉइंट प्रोजेक्ट आ, ये भी इजराइल तो यूएस मिलके अमेरिकन मिसाइल डिफेंस एजेंसी के नाल मिलके बेसिकली एरो 3 वैपन सिस्टम जोड़ा कंप्लीट किया गया गा सक्सैसफुली। सो अमेरिका तो बेसिकली इजराइल, ये भी चाइना के बेसिकली अगेंस्ट ही है। राइट आ, सो सारा कुछ ही अमेरिका तो चाइना की खैर लगती रहती है। डिफेंस मिनिस्ट्री सैट्स अप रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। सो जेडे एक्स सर्विसमैन है बेसिकली इन्हों का पेंशन को लैके तुहानूं पता बहुत ज़्यादा रौला पैंदा रहिंदा, जां जिन्ने भी वैलफेयर इन्हों वास्ते यानी कि जिमें फंड वगैरह जारी होंगे वैलफेयर वास्ते जिन्ना भी इन्हों पैसा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। सो वो शिकायतों वास्ते एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है जी रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। ये सैटअप किया गया, एक ऑनलाइन पोर्टल है रिजॉल्व करने वास्ते पेंशन रिलेटेड जो भी ग्रीवेंसीज ऑफ एक्स सर्विसमैन सर्विस, जो एक्स सर्विसमैन मैन है। ठीक है। सो द पोर्टल विल अलाउ दैम टू लॉज ग्रीवेंस, उत्थे यानी कि अपनी प्रॉब्लम वगैरह शेयर कर सकते हैं एंड किहदे नाल डायरैक्टली विद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड DESW यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जोड़ा वेलफेयर है, इसने फंड जारी किया गा जोड़ा कि यानी कि पिछला जिन्ना भी हैगा 320 करोड़ का 320 करोड़ का फंड जारी करता टू आर्मड फोर्स फ्लैगड फंड नूं कि भाई जिन्ना भी तुहाडा बैकलॉग है पेंडिंग है यानी कि पेंडिंग एप्लीकेशन है सारा तुसीं उन्होंने यानी कि जोड़ा है डिसबर्स करो। राइट, यानी कि उन्होंने पूरा करो। इस तरीके दे नाल सारा कुछ किया गया गा स्पैशली उन्होंने एजुकेशन वास्ते एंड मैरिज ग्रांट्स फॉर विडोज, जिन्नियां भी वैलफेयर यानी कि स्कीम्स है वो जो भी पेंडिंग पिया बेसिकली ये राही उन्होंने कहा भी 320 करोड़ रुपया जोड़ा है इसे करके दिता गया कि जिन्ना भी बैकलोड पेंडिंग उन्होंने पूरा करना चाहिए। साउथ अफ्रीका ने बेसिकली अपना लॉन्च किया पहला इंडिजीनियसली डिवेलप सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन MDA सैट। कॉन्स्टलेशन की होंदा जिवें सप्तऋषि आपां एक स्ट्रक्चर पढ़ते होंगे जिवें पॉलिटी दे विच आपां सॉरी हिस्ट्री जियोग्राफी दे विच पढ़ते होंगे कॉन्स्टलेशन। ठीक है, उस तरीके का पहला इंडिजीनियसली साउथ अफ्रीका ने बेसिकली यह लॉन्च किया जिसका नाम है जी MDA सैटेलाइट। नाम तो फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनैस सैटेलाइट। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनैस सैटेलाइट जोड़ा कि साउथ अफ्रीका द्वारा पहला इंडिजीनियसली डिवेलप किया गया। कित्थे किया गया? यूनाइटेड स्टेट दे विच किया गया। कित्थे किया गया? केप कैनावरल। राइट, सो ये चलो याद रख सकते हो। एंड ये बेसिकली किहड़े मिशन का पार्ट है? ट्रांसपोर्टर 3 मिशन का पार्ट है जोड़ा कि स्पेस एक्स का एक मिशन है। बेसिकली स्पेस एक्स का एक मिशन है ट्रांसपोर्टर 3 मिशन। बेसिकली ये बहुत सारे कंट्री ते बहुत सारिया ऑर्गेनाइजेशन के जोड़े जिमें इन्हों का MDA सैट है बहुत सारे सैटेलाइट लैके जाऊगा, इस करके नाम ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्ट का काम करूगा। स्पेस एक्स बेसिकली दा एक मिशन है भी जोड़े बहुत सारे कंट्री की हैल्प करूगा भी तुहाडा जोड़ा जो भी सैटेलाइट है उन्होंने असीं लैके जावांगे। उमें यानी कि साउथ अफ्रीका का पहला इंडिजीनियसली डिवेलप जोड़ा होया वो लॉन्च हो चुका है MDA सैट यानी कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनैस सैटेलाइट। ठीक हो गया। इस तो बाद आ गया इसरो ने सक्सैसफुली कंडक्ट किया गया भाई क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान। सो गगनयान अपना पहला ह्यूमन स्पेस यानी जो मिशन है बेसिकली जोड़ा कि लॉन्च किया जाना GSLV Mark 3 द्वारा। राइट है, यानी इनू लैके जाऊगा GSLV Mark 3 यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वहीकल Mark 3 लॉन्च वहीकल टू बी यूज फॉर द गगनयान प्रोग्राम। राइट, एंड यूज करूगा 2 क्रायोजेनिक इंजन जिहदे विचों एक क्रायोजेनिक इंजन का आपां सक्सैसफुली टेस्ट कर चुके हैं जिहदा नाम हैगा विकास। ठीक है, जिहदा नाम विकास इंजन है। सो बेसिकली यदा सक्सैसफुली आप कर चुके हैं। सो 2 क्रायोजेनिक इंजन लगणगे इहनूं लिजाण वास्ते। सो दिस इंजन डिवेलप्ड बाय इसरो द्वारा किया गया जिहदा नाम हैगा विकास। द सक्सैस ऑफ विकास इंजन सिग्नल्स अ ग्रेट ऑब्वियस गल है ब्रेक थ्रू है। राइट, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई याद रखना विकास का नाम।
ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਇੰਡੀਜੀਨਸ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ INS ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ 2024 ਜਾਂ 30 ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ 90% ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਕਰਾਂਤ ਬਗੇਨ ਅਨਦਰ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਚਿਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਥੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ CV ਰਮਨ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ 2022 ਦਾ ਥੀਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ। ਐਂਡ ਥੀਮ ਕੀ ਆ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਅਪਰੋਚ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਿਊਚਰ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਓਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਕਹਿਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬੋਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।